Hello everyone, how are you all? Hope you are fine and you all have done your homework which I gave you in the last video. So now I am here to continue with the same chapter we did in our last video, and the chapter is the tsunami. So today we are going to read its part 2 and 3 and will listen to the explanation. So now let's start reading. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? So now the writer is asking you that why do you think the parents have made such decision when their daughter has won so many awards and she actually saved lives of hundreds of people who were present on that beach, that Phuket beach in Thailand. So let's read the story of this girl, Tilly Smith. Now here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. So now they are telling this family was the Smith family was actually from England, southeast England, but they were at Phuket beach at that moment and they were celebrating the Christmas. They went there to celebrate Christmas. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. So now they are telling about the family that Tilly herself was 10 years old and her sister was only 7 years old, and their parents means her mother name was Penny Smith and Colin Smith was his father. So it was 26th December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. So now they are telling कि it was 26 December 2004 means आज से almost 16 years before ये जो सुनामी है ये आई थी, और ये आई थी 26 दिसंबर को, ठीक है, द नेक्स्ट डे ऑफ क्रिसमस. तो वो बोल रहे कि जो डेडली सुनामी है वो उसकी वे पे थी व्हेन दे हैड बीन ट्रिग्ड बाय, और वो कैसे आई थी क्योंकि सुमत्रा जो कि इंडोनेशिया में एक स्टेट सिटी है वी कैन से, ठीक है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक आया था उसी मॉर्निंग में, और वो सुमत्रा जो है वो फुकेट बीच से बहुत पास है, तो उस वजह से उसके अंदर जो है वो शेक्स उस सी में उठे थे, उस बीच पे उठे थे, तो उस वजह से वो अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आई थी. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. ठीक है, अब जो पेनी स्मिथ है यानी जो उसकी मदर हैं वो कहती हैं कि मुझे याद है आज भी कि पानी जो है वो स्वेल कर रहा था, मतलब वो ऊपर 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 उठ रहा था. जब स्वेलिंग होती है तो क्या होता है, हमारी जिस भी बॉडी पार्ट पे या जहाँ पे भी हमें स्वेलिंग होती है वो ऊपर से उभर जाता है, ऊपर हो जाता है, उठ जाता है, मोटा हो जाता है, वो चीज़ मोटी हो जाती है. सो सेम थिंग वो वही बोल रही कि पानी जो है वो स्वेल हो रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो कहीं बीच जो है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर हो रहा था, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था कि जब सुनामी आती है तो जो पानी होता है जो बीच पे वो पीछे की तरफ जाता है पहले, और फिर एकदम से ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, करिए मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग. करिए लेकिन जो टिली स्मिथ थी यानी जो उनकी डॉटर थी उसको पता लग गया था कि कुछ गलत हो रहा है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. नाउ दे आर टेलिंग कि वो जो है टिली जो है वो अपने 2 weeks बैक जो लेसन वो पढ़ के आई थी ज्योग्राफी का, उसका माइंड जो है वहाँ पे जा रहा था. नाउ लेट्स रीड उसका क्या था, वो लेसन में क्या था. Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubbly and form whirlpools. ठीक है, सो दे आर सेइंग कि उसने देखा कि जो सी है वो स्लोली राइज कर रही थी और स्टार्ट टू फोम, फोम काइंड ऑफ थिंग बनानी चाहिए. फोम क्या होता है,
जो बहुत झाग झाग सी होती है ना, जैसे हम जब मशीन में कपड़े धोते हैं, अगर कभी आपने देखा हो, उसके अंदर बहुत जब हम सर्फ डालते हैं, वो सर्फ अगर थोड़ा भी ज़्यादा डल जाए वो फोम फोम सी हो जाती है बार बार घूम घूम के, ठीक है। सो वो चीज़, बबल्स एंड सम फॉर्म वेयरपुल्स, और बबल्स होने लग गया, वेयरपुल्स मतलब जब घूमने लग गए वो चक्कर चक्कर से, जैसे उसको लगा कि आ रहे हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी। उसको याद आया कि उसने ये चीज़ जो है उसने क्लास में देखी थी, जब उसकी टीचर ने उसको वीडियो दिखाई थी एक सुनामी की, दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड इन 1946, जो कि वीडियो थी हवाइन आइलैंड की, जो 1946 में वहाँ पे जो सुनामी आई थी उसकी। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. So वो बोल रही है, और उसको दिखाई गई थी फोटो, वो वीडियो, और बताया था कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक, वॉल्केनोज और लैंडस्लाइड्स की वजह से हो सकती है। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. Said her mother, Penny, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. So, टिली ने क्या किया, टिली ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी फैमिली को कि भाई यहाँ से चलो यहाँ से बीच से चलो, और उसने बताया कि देयर इज अर्थक्वेक अंडर द सी, कि सी के नीचे अर्थक्वेक चल रहा है, अर्थक्वेक है और सुनामी आने वाली है। तो उसकी मदर बोलती हैं कि आई डिडंट न्यू, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि हम लोग डर गए। एंड शी सेइंग कि मुझे नहीं पता था सुनामी क्या है, बट जिस तरह से वो चिल्ला रही थी, जिस तरह से वो डरी हुई थी, तो उससे हमें लगा कि कुछ तो होने वाला है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. Then they are saying कि then क्या हुआ, उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने टिली को और उसकी सिस्टर दोनों को पकड़ा लिया और वहाँ से चले गए और स्विमिंग पूल पे चले गए होटल के। और उनको देख के कि भी वो डर के मारे भाग रहे हैं, लोगों ने उनको सुना, सो उन्हें देख के और जो वहाँ पे टूरिस्ट थे वो भी उस बीच से चले गए। देन वो कह रहे कि ऐसा लगा जैसे कि जो एंटायर बीच है, पूरी की पूरी बीच है, वो भी उनके पीछे आना शुरू हो गई है। एंड दे वर स्क्रीमिंग एंड रनिंग, बोल रहे हम चिल्ला चिल्ला के भाग रहे थे। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। द बिल्डिंग withstood द सर्ज ऑफ 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. So वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बाद में रिफ्यूज लिया, मतलब वो जाके रुके होटल के 3rd फ्लोर पे, और कह रहे वहाँ पे भी 3 सुनामी वेव्स जो है आके टच करके गई। सो दे आर सेइंग कि अगर वो बीच में होते तो वो अब तक जिंदा ना होते। द स्मिथ्स लेटर मेट other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. So now they are saying कि वो बाद में कुछ और टूरिस्ट से मिले जो कि अपनी पूरी पूरी फैमिलीज लॉस्ट कर चुके थे बिकॉज ऑफ दैट सुनामी, क्योंकि उनको सेव नहीं किया गया था, उन्हें नहीं पता था सुनामी के बारे में, वो नहीं वहाँ से गए, वो नहीं भागे। सो दे all are actually thanking Tilly कि thanks to Tilly that we got saved, we are actually saved, fine. So at the last वो क्या करती है, वो अपने स्कूल वापस जाती है और अपनी फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को अपनी पूरी स्टोरी बताती है what was happened. This was actually terrifying. So now we have the last part, that is 3rd part. So let's read. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start. Calm blue sea, ruined huts. Okay, so this is your homework which you will do. Fine, you have to describe this picture in words or phrases, very small phrases. Fine, and
we'll start with the chapter. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They're saying कि जब श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका के कोस्ट में सुनामी आने वाली थी, वेव स्लैम्ड होने वाली थी, मतलब आने ही वाली थी वेव्स, उससे पहले ही जो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको पता लग गया था कि कुछ होने वाला है. दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो जो है सेफ्टी की तरफ भागना शुरू हो गए थे. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, dogs refused to go outdoors, flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, मीन जिन्होंने देखा है खुद चीज़ों को, वो बता रहे हैं कि जो एलिफेंट्स हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू हो गए और वो हायर ग्राउंड्स पे भागना शुरू, मतलब दूर कहीं ग्राउंड्स पे भागना शुरू हो गए जो हाइट पे हो, ताकि उनको हार्म ना कर पाए सुनामी. जो डॉग्स थे, जो पेट डॉग्स थे, वो बाहर जाने से उन्होंने मना कर दिया कि वी डोंट वांट टू गो आउट, हमें बाहर नहीं जाना है, हमें घर में ही रहना है. उन्होंने वो चीज़ मना कर दी. फ्लेमिंगोज जो है उनका लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज होते हैं, मतलब जहाँ पे वो अपने एग्स देती हैं वो वहाँ मतलब मिट्टी के नीचे रखती हैं, ठीक है. सो अर्थ लेवल से थोड़ा नीचे होता है, वो छोड़ के भाग गई वहाँ से. देन जो जू के एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर्स में इस तरह अंदर चले गए थे कि उनको फोर्सली भी बाहर नहीं ले जा सकता था. उन्हें फोर्सली बाहर लेके आना भी बहुत मुश्किल हो गया था. Many people believe that animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. करिए कि कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के अंदर एक ऐसी सिक्स सेंस होती है कि उन्हें पता लग जाता है पहले भी जब अर्थ शेक करने वाली होती है. Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. और कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास हेयरिंग पावर होती है, ऐसी हेयरिंग पावर होती है जो कि हेल्प करती है उन्हें फील करने में और सुनने में. वो चीज़ अर्थ की वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा ईजिली वो सुन सकते हैं, बिकॉज उन पर ऐसी पावर होती है जो कि ह्यूमन बींग्स में नहीं होती है. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. यानी कि वो जो ये डिज़ास्टर है वो और ह्यूमन से बहुत पहले सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और ह्यूमन्स को बहुत टाइम बाद पता चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है या होने क्या बात. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported there. कह रहे हैं वी डोंट नो कि ये सच है या मिथ है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है, बट जो जाइंट वेव्स हिट की थी इंडियन ओशन पे उसने ऑलमोस्ट 150,000 लोगों को मार दिया था. लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे थे जहाँ पे कहा गया हो कि जो एनिमल्स हैं वो मरे. वाई? इसका रीज़न ये हो सकता है कि उनको पहले पता लग गया और वो कहीं ना कहीं भाग गए अपने शेल्टर्स के लिए और वो बच गए. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. कह रहे हैं एक Cuddalore coast था जहाँ पे thousands of people जो हैं वो मर चुके थे, लेकिन वहाँ की जो बफेलोज, गोट्स और डॉग्स थे वो बिल्कुल अनहार्म्ड पाए गए, उनको कोई हार्म नहीं हुआ था. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. ठीक है, अब वो बता रहे कि एक याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में जो कि बहुत सारे एनिमल्स का जो होम है. ठीक है, वहाँ पे एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं और 130 काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं. लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पाटनंगा बीच इनसाइड द पार्क. अब जो वो बीच है इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर जो बीच है वहाँ से पाटनंगला बीच, वहाँ से 60 विजिटर्स जो हैं वो वॉश्ड अवे हो गए थे, मतलब मर गए थे और बह गए थे उस सुनामी के साथ. बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. लेकिन जो डेड बॉडीज़ हैं यानी कारकासेस होती है, जो एनिमल डेड बॉडीज़ होती है, वो उनको नहीं मिली थी कोई भी, एक्सेप्ट फॉर
2 वाटर बफेलो, सिर्फ 2 वाटर बफेलो, बिकॉज वो वाटर में ही रहती तो वो कहीं नहीं गई थी. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patlanga beach. वो कह रहे कि 3 घंटे पहले सुनामी जब आई थी उससे 3 घंटे पहले लोगों ने एलिफेंट्स को भागते हुए देखा था उस बीच से. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gal said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. अब वो बोल रहे श्रीलंका में एक जेंटलमैन है मैन है जिसने बताया कि जो कि कोस्ट के पास ही रहता है, और उसने बताया कि मेरे जो डॉग्स हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं बाहर जाने के लिए, बीच पे जाने के लिए, बट उस दिन उसके जो डॉग्स हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया बाहर जाने से. दिस सेड, मतलब उन्होंने एक्ट ऐसा किया कि वो बाहर नहीं जाना चाहते. ठीक है, सो ही सेइंग कि दे रिफ्यूज, और उसकी वजह से मेरी लाइफ जो है वो बच गई. नाउ योर टुडेज होमवर्क इज टू कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंशन चेक ऑफ बोथ द पार्ट्स, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, एंड दैट वर्क दैट हैज़ टू बी डन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पार्ट 3, जिसमें फ्रेजेस एंड वो वर्ड्स लिखने हैं डिस्क्राइबिंग दैट पिक्चर. सो दिस इज योर होमवर्क एंड टुमारो वी विल डू द question answers of this chapter. So till then, bye bye, complete your homework on time and see you later.